field integrating ancient Ayurveda and modern genomics. To broaden our perspective in this era, I welcome on the dais Dr. Bhavna Parashar ma'am, Principal Scientist CSIR Trisutra Ayurveda Genomics Unit, New Delhi. Honorable Principal Professor Dr. Sarita ma'am will be chairing this session, for which co-chairperson would be Professor Dr. Kendra sir, Head of the Department of Kai Chikitsa. May I request to our May I request to Dr. Sulakshana ma'am to floral welcome to Dr. Bhavna ma'am. Please give big round of applause to ma'am. Dr. Snehal Sonani, Assistant Professor, feeling very privileged to introduce our esteemed guest speaker, Dr. Bhavna Parashar ma'am. Rather, I can say distinguished scholar and a researcher in the field of Ayurveda. Ma'am presently working as a scientist, as a senior scientist at CSIR, Institute of Genomics and Integrative Biology, New Delhi, where she is leading the Ayush Center of Excellence for Genomics. She did her graduation from the University of Mumbai in 1994 and post-graduation from the IPGT and RA in 1997. She joined CSIR in 2001 as an Ayurveda expert for the CSIR TKDL. Onwards, since 2002, she has pioneered the field of Genomics, established molecular and genomic underprinting of the Prakriti and Tridosha, and also developing AI and ML algorithm for Prakriti analysis. She provided national level technical support and training for the Desh Ka Prakriti Parikshan Abhiyan, which is launched by the Honorable Prime Minister. She had published n number of articles in a peer-reviewed journal. She also teaches as a professor at ACSIR and adjunct faculty in Ayurveda Biology SSIS JNU. She had significant role in advancement of integrative research and capacity building in the Ayurveda. One more crown to her career is for her extraordinary contribution to the field of Ayurveda. She was honored with the prestigious National Dhanvantri Ayurveda Award in 2025. Thank you, ma'am, that we have with us. I would like to request ma'am to take over the mic for her valuable enlightening speech. Over to you, ma'am. That's a challenge I take to wake you up, keep you energized in this session. So as I was told about talking about multi-omic correlates of therapeutics as well as dosha. So since morning you are hearing mostly the drug development related safety, toxicity, preclinical, clinical aspects. That's the most studied and the most wanted kind of a thing that happens in Ayurveda research. We will be shifting a focus little bit towards diagnostic side. And even in the diagnostic side, the Prakriti, which allows us to do a unique personalization for every individual. So that is one of the, so next slide please. So because this is Agnivesh Sambhasha and we want to start from the definition, Hetu Linga and Aushadha Gyanam Swasthatur Parayanam, Swastha and Atur. Okay, so it's not just the health and the disease, it's about the healthy and the diseased, which means the basic understanding of Hetu, Linga and Aushadha is not for a standard disease definition and standard health definition. It incorporates personalization right from the understanding of the disease. Next slide please. So this is our Trisutra Ayurveda. Whatever we heard so far was like clinical medicine and we are today right now we are talking about clinical aspect leading us to basic understanding of Vata Pitta Kapha at a modern genomics and biological levels. So each of these axis हेतु अपने आप में, लिंग अपने आप में, औषध अपने आप में एक बहुत डिटेल रिसर्च का सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन इनके बीच के जो कनेक्शंस हैं, ये कनेक्शंस एक्चुअली हमें ट्रांसलेशनल मेडिसिन फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं और इसमें जो पर्सनलाइजेशन एम्बेडेड है उससे हम कितना नया प्रेडिक्टिव मेडिसिन और पर्सनलाइज मेडिसिन के लिए
ना सिर्फ आयुर्वेदा को समझाने के लिए बल्कि मॉडर्न साइंस को भी हम नई डिस्कवरीज दे सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो जैसा कि आप सबने देखा ही होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ की डेफिनेशन, इट्स नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी बट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग। लेकिन इस वेलबींग को डिफाइन नहीं किया हुआ है, जबकि आयुर्वेद में हमारे यहाँ पे वेलबींग डिफाइन किया हुआ है। कैसे डिफाइन किया हुआ है? एनीबडी? हेल्थ की डेफिनेशन आयुर्वेद की समदोष समाग्निष्ठ, राइट? सो ये बेसिकली ये डेफिनेशन अपने आप में कनेक्शन है इंटरनल बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या ठीक होना चाहिए जिससे बाहर प्रसन्न आत्मा, इंद्रिय, मन आपको दिखाई दे। इसका मतलब हमारा डेफिनेशन भी अपने आप में इंटरनल बायोलॉजिकल का कनेक्ट विद द क्लिनिकल मेडिसिन है। इसी को चरक ने धातु साम्य लक्षणों के रूप में बहुत डिस्क्रिप्टिवली लिखा है कि आप कब मानेंगे कि एक व्यक्ति डिजीज फ्री हो गया। जैसे यहाँ बोल रहे हैं ना, नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी, बट एब्सेंस ऑफ डिजीज या एब्सेंस ऑफ इन्फर्मिटी को उन्होंने डिटेल में डिस्क्राइब किया है। कैसे किया है? स्वर वर्ण योग, है ना, शुद्धा आहार काले रुचि ही आहार काले अव्यवृतस्य आहारस्य सम्यक जरणम, है ना, सम्यक निद्रा। एवरी स्टेप में जब आप देखोगे तब आप उसको बोलोगे कि ये धातु साम्य अवस्था में आया है और आपका प्रयोजन पूरा हो गया। सो दिस इज द डिटेल विद विच आवर आचार्यज हैव डेल्ट विद हेल्थ, एंड नॉट ओनली हेल्थ एज अ दी हेल्थ, दे हैव आल्सो गिवन probable variations that may arise in health same parameters पे। अब जैसे हमने build and nourishment, voice complexion, रुचि, आहार काल, ये सब धातु साम्य अवस्था में पढ़ा, उसी पैरामीटर्स पे यहाँ पे प्रकृति के लक्षण बोले हैं कि अलग अलग प्रकृति के लोगों का वॉइस कॉम्प्लेक्शन, एपेटाइट, एक्सक्रीशन पैटर्न, मेटाबॉलिक पैटर्न, फिजिकल स्ट्रेंथ, स्लीप पैटर्न, ये वेरी कर सकते हैं। सो इट वाज सो मैच्योर। ऐसा नहीं ये है तो हेल्थ है और इसके बियॉन्ड है तो डिजीज है, नहीं, हेल्थ में भी कितनी तरह की वेरिएबिलिटीज हो सकती हैं। और वो वेरिएबिलिटीज ना सिर्फ खाना पीना, अब खाना पीना सोना उठना ये तो बाहर दिखने वाली चीज है जो क्लिनिकल लेवल पे आप देख सकते हो, लेकिन उसके इंटरनल सिस्टम्स के ऊपर भी कोई पैटर्न्स हो सकते हैं। और वो पैटर्न्स आपको रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट में, रिस्पॉन्स टू मेंटल स्ट्रेस में, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स ट्रिगर्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। और यही चीज बताती है कि हमारे यहाँ पे प्रेडिक्टिव मेडिसिन का इनबिल्ट कॉन्सेप्ट है कि हर व्यक्ति हर सिचुएशन में सेम तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, और यही फॉर्म करता है बेसिस फॉर प्रेडिक्टिव मेडिसिन, basis for personalized prevention, even prevention भी personalized, right? So that gives, empowers a person that मेरे लिए ये खास है, मेरे लिए ये preventive है, मेरे लिए वो ज़्यादा suitable है। So that gives, जब आप किसी बहुत ही डेवलप्ड स्टेट में होगे तभी आप इतने वेरिएशंस के बारे में सोच सकते हो। अगर आप बेयरली हेल्थ को अचीव कर पाओगे तो कहाँ वेरिएशंस के बारे में समझ पाओगे। दिस टेल्स दैट how well advanced and how developed that stage of medicine was at that point of time. अभी कमिंग टू अगेन त्रिदोष त्रिसूत्रा, लेकिन ये त्रिसूत्रा में जो हेतु है वो आभ्यंतर हेतु, बाह्य हेतु में भी आहारज, विहारज, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लक्षणों में भी बहुत तरह के लक्षण डिस्क्राइब्ड हैं। थेरेपीज भी पंचकर्मा है, शोधन है, शमन है, रसायन है, दिनचर्या है, ये सारे बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। लेकिन ऑल ऑफ दिस are talking to each other through a common language of tridosha, dosh, dhatu, mal, right? So therefore tridosh becomes a common language, एक तरह से एक ऐसा यूनिट हो गया हमारे आयुर्वेद के त्रिसूत्रा आयुर्वेद का। ये कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर इन्फ्लुएंस करेगा तो वात पित्त कफ को इस तरह से इन्फ्लुएंस करेगा, कोई भी अंदर का वात पित्त कफ का धातुओं का व्यापार चलेगा तो बाहर जो लक्षण मैनिफेस्ट होंगे वो बहुत तरह के हो सकते हैं। लेकिन वो लक्षणों को फिर से हम ब्रेक कर सकते हैं कि ये वात वृद्धि का लक्षण है, पित्त वृद्धि का है, कफ वृद्धि का है। ये मेरा कहने का मतलब है कि एवरीथिंग इज ट्रांसलेटिंग इन टर्म्स ऑफ वात पित्त एंड कफ। नेक्स्ट 2 स्लाइड्स नेक्स्ट प्लीज। हाँ, सो अब यहाँ इसका मतलब कि हेल्थ को तो वो डिटेल में समझ रहे हैं। हेल्थ टू डिजीज ट्रांजिशन ये भी कोई एकदम से नहीं हो जाता है। नॉर्मल लोग कभी प्री डिजीज स्टेट में, डिजीज स्टेट में, फिर प्रोग्रेशन में, कॉम्प्लिकेशंस में जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन आज की तारीख में भी मॉडर्न साइंस के सामने ये है कि किसको होगा और क्या होगा और कब होगा, कितना प्रोग्रेस होगा। और अगर एक डिजीज सबको एक जैसी हुई है
तो क्या सबको एक ट्रीटमेंट चलेगी? जैसे मॉर्निंग से हम सुन रहे हैं कि हमें पर्सनलाइजेशन करने की, लेकिन इस पर्सनलाइजेशन के लक्षणात्मक डिस्क्रिप्शंस हमारे आयुर्वेद में हैं, लेकिन क्या इनकी सहायता से हम कोई मॉडर्न बायोमार्कर्स भी बता सकते हैं कि हाँ इन व्यक्तियों में जिनमें ये बायोमार्कर है, ये इस पर्टिकुलर व्याधि के लिए ज्यादा ससेप्टिबल है या इस रिस्पॉन्स के लिए ज्यादा ससेप्टिबल है। तो ये मॉडर्न मेडिसिन की भी सेम क्वेश्चंस हैं कि who, when and what, who will get that disease, which system will get affected। हमारे यहाँ पे सिस्टम खवाई ढूंढने का भी कॉन्सेप्ट है। सेम ट्रिगर होके भी अलग अलग लोगों को अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस होते हैं सबको एक जैसे नहीं होते हैं। तो ये क्वेश्चन मॉडर्न मेडिसिन को भी बॉदर कर रहा है। और मॉडर्न जीनोमिक्स तो मॉडर्न जीनोमिक मार्कर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर मार्कर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो प्रिसीजन हेल्थ केयर की तरफ लेके जा सके। आयुर्वेद में हमारे यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि पर्सनलाइजेशन है, तो पर्सनलाइजेशन इंडिविजुअल के बारे में देखते हुए भी है और डिजीज के बारे में देखते हुए भी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। डिजीज के बारे में भी देखना है, जैसे कि विकृति के सब टाइप्स क्या है, स्टेज कौन सी है, कितनी सीवियरिटी है। बट केवल डिजीज देखते हुए ड्रग डिसाइड नहीं हो रही है। यहाँ पे कहते हैं ना कि दोष प्रमाणानुरूपो ही भेषज प्रमाण विकल्पो, बट बल प्रमाण अपेक्षो भवति। तो बल कैसे आता है? इंडिविजुअल के फैक्टर से। उसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, प्रकृति, विकृति, सार, लेकिन प्रकृति हमेशा टॉप पे रहती है। व्हाई? बिकॉज नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। प्रकृति का डिस्क्रिप्शन आयुर्वेद में प्रेडिक्टिव एस्पेक्ट के लिए भी है, पर्सनलाइजेशन के लिए भी है, और प्रमोटिव हेल्थ में भी आपकी कौन से सिस्टम की स्ट्रेंथ बढ़ाने की ज्यादा जरूरत है, उस हिसाब से आपको वैसा वाला रसायन सिलेक्ट करना होगा। तो इस तरह से प्रकृति की इंपॉर्टेंस पर्सनलाइजेशन, प्रेडिक्शन, प्रमोशन हर तरह के लिए है। व्हाई सो प्रकृति, नेक्स्ट स्लाइड। व्हाई सो मच इंपॉर्टेंस इज गिवन टू प्रकृति? व्हाट इज द बेसिस? And can we actually do combination of, एक तरफ मॉडर्न जीनोमिक्स जीनोमिक मार्कर ढूंढ रही है इस तरह के पर्सनलाइजेशन के लिए, आयुर्वेद में प्रकृति संगत पर्सनलाइजेशन इतना सारा डिस्क्राइब है, तो क्यों ना हम इन दोनों को मिला सकते हैं, और अगर मिलाते हैं तो क्या इसके बेस पे हमें प्रेडिक्टिव मार्कर की डिस्कवरी हो सकती है। नेक्स्ट स्लाइड। ये आप लोगों को सबको पता ही होगा कि प्रकृति का निर्माण किस तरह से होता है, फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा होगा। शुक्र शोणित में भी प्रकृति, शुक्र शोणित में भी दोष होते हैं। इसका मतलब एवरी सिंगल सेल में दोषों का प्रमाण अलग अलग होता है, हर एक व्यक्ति परक होता है, और वो प्रमाण अपने आप में उनके ज्योग्राफिकल लोकेशन, क्लाइमेट, एज, डाइट, लाइफस्टाइल पे डिपेंड कर सकता है। फीटल डेवलपमेंट के दौरान भी जो आहार विहार लिया जाता है उससे भी दोष प्रभावित होते हैं। तो एक टोटल मिला के जो दोष का प्रपोर्शन बनेगा वो एक व्यक्ति की प्रकृति बनाएगा। तो इससे ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचो तो ये क्लियर है कि एवरी सेल टाइप में आपके दोषा डोमिनेंस जो है वो गवर्न कर रहे हैं आपके डेवलपमेंट को, और ये पैटर्न्स बहुत ज्यादा हार्डवायर हो जाते हैं, जिसे मॉडर्न साइंस भी समझती है कि ये जेनेटिक और एपिजेनेटिक दोनों तरह के फैक्टर्स से मिला हुआ कोई एक रिजल्टेंट फिनोटाइप डिस्क्राइब कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो आप समझ सकते हैं कि अगर शुक्र शोणित जीव सोइयों के योग भवे दोष उत्कट से लेके मातुर आहार विहार प्रकृति, काल विहार भाषा प्रकृति, सारी चीजें इन्फ्लुएंस कर रही हैं, तो ये दोष, इसका मतलब ये हुआ कि दोष डीएनए से लेके जो सेंट्रल डॉगमा है, डीएनए से लेके आरएनए, आरएनए से लेके प्रोटीन, प्रोटीन से लेके मेटाबोलाइट्स, मेटाबोलाइट्स से लेके उनके इंटरैक्टिव पाथवेज, इन सब के ऊपर इन्फ्लुएंस उनका होगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और ये इन्फ्लुएंस जब डेवलपमेंटल पीरियड में होगा तो ऑर्गन सिस्टम के डेवलपमेंट के टाइम पे भी उसका इंप्रेशन देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे गौर करिए कि सारे ऑर्गन्स, जैसे कफ, फुफ्फुस है तो वो वात कफ प्रसादज ही है, अगर लिवर है तो वो शोणित प्रसादज ही है, लेकिन अगर वात प्रकृति, वात डोमिनेंट डेवलपमेंट चल रहा है तो उसके ऊपर उसके असर दिखेंगे, और अगर पित्त डोमिनेंट डेवलपमेंट चल रहा है तो पित्त की एक्सिस और पित्त की प्रकृति की एक्सिस और लिवर की प्रकृति की एक्सिस दोनों मैच कर रहे हैं, तो
पित्त प्रकृति के लीवर में ऑल द मोर प्रकृति का पित्त का डोमिनेंस दिखेगा. दिस इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ ए बेसिक डोमिनेंट दोषोत्कटता डेवलपमेंट के दौरान, इवन ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स भी कैसे उसके ऑर्गन्स की प्रकृति को भी कैसे इन्फ्लुएंस कर सकती है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो इस तरह से क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ दोषा एट ऑल लेवल्स ऑफ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैन गिव राइज टू प्रकृति पैटर्न्स इन स्ट्रक्चर एज वेल एज पैटर्न्स इन द फंक्शन ऑफ दैट सिस्टम. एंड इस तरह से इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट, इंडिविजुअल ऑर्गन सिस्टम्स का भी रिस्पॉन्स टू आभ्यंतर हेतु डिफर कर सकता है. नेक्स्ट स्लाइड. सो इस तरह से नेक्स्ट इसको पूरा ही स्लाइड बना दो क्योंकि एनिमेशन तो हाँ. सो ये वात पित्त कफ के कुछ फंक्शंस हैं. यही फंक्शंस अगर उन ऑर्गन सिस्टम के फंक्शंस में ओवरटली एक्सप्रेस होंगे तो उस तरह से लक्षण निर्माण होंगे. राइट. वो जैसे कि वात का नॉर्मल स्थान है लोअर गट और वात का फंक्शन है मूवमेंट, एक्सक्रीशन वगैरह. तो लोअर गट में अगर वात का फंक्शन ज्यादा दिखेगा वात प्रकृति में तो बाउल हैबिट्स, स्टूल कंसिस्टेंसी, इसके ऊपर इफेक्ट दिखेगा. सो यहाँ पे इंटरनल बायोलॉजी से लेके एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ द क्लिनिकल फीचर्स तक पूरा क्लियरली आयुर्वेद में हमारे यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है. तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रकृति हैज गॉट लॉट ऑफ hardwired patterns which can be found even at the molecular and genomic level. So next slide please. Next. So this is what finally also gives rise to prakriti features is what I am trying to tell. और इतना ही नहीं कि एक बार फीचर्स आ गए तो वो स्टैटिक है. हम सब जानते हैं कि हम लोग टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, लेकिन वो चेंज का जो पैटर्न है वो भी हार्डवायर्ड हो सकता है क्योंकि सेम एनवायरमेंटल रिस्पॉन्स, सेम डाइट, सेम स्ट्रेस लेवल पे सभी लोग सेम रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं. विच मीन्स हमारे रिस्पॉन्सेस के पैटर्न्स जो है वो काफी हार्डवायर्ड होते हैं. तो और यही बात आयुर्वेद में लिखी भी है. रोबस्ट पैटर्न्स इन मेटाबॉलिज्म, नरिशमेंट एंड रिप्लेनिशमेंट ऑफ बॉडी टिश्यू. जहाँ पे कहते हैं ना कि आहार रस से सारी धातुओं की निर्मित होती है, लेकिन धातवो ही धातु आहार प्रकृतिम अनुवर्तन्ते. सिमिलरली देश काल का भी इम्पोर्टेंस है. जैसे उन्होंने रक्त के निर्माण के दौरान बोला है, देश काल और ओकसात्म्य और इन सब का भी इन्फ्लुएंस होता है डे टू डे जब रिप्लेनिशमेंट ऑफ धातुस होता है. नेक्स्ट स्लाइड. स्टिल नेक्स्ट स्लाइड. सो और ये इसमें तो और भी स्पष्ट रूप से रक्त के केस में तो लिखा हुआ है कि विशुद्ध रक्त लिंगे नाना वर्णता वातादि प्रकृतित्वा मनुष्याणाम. और अलग अलग प्रकृति के लोगों में नाना वर्णता देखने को मिलती है, ऐसा उन्होंने साफ लिखा है चरक ने. और वातपित्त कफ से अगर फर्दर वो विकृत हो जाए तो उसके भी अलग अलग आउटकम्स हो सकते हैं. इस पे आई वांट यू पीपल टू रिमेम्बर एंड पे अटेंशन टू. यहाँ पे क्या लिखा है? अणुनाभम भवेद वाता विशदम फेनिलम तनु पीतासितम रक्तम स्त्यायति औष्ण्यात चिरेण च. उष्णता की वजह से पित्त दुष्ट रक्त जो है वो देर से स्त्यायन करता है. यहाँ सीधा सीधा इन्होंने प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम या हाइपर कोएगुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं. सिमिलरली कफ में बोल रहे हैं कफात दुष्टम पिच्छिलम तंतुमत घनम, है ना. ये थिक ब्लड है और इसमें स्कंदत्वात् शोणितम न स्रवती, ये है हाइपर कोएगुलेबिलिटी इन कोल्ड एंड क्लाउडी वेदर कंडीशंस. सो ये ना सिर्फ बोल रहे हैं कि प्रकृति और देश काल से ये चीजें इन्फ्लुएंस होंगी, ये एग्जाम्पल भी दे रहे हैं कि कौन सा ट्रेट इन्फ्लुएंस होगा. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. और उसी हिसाब से डाइट और लाइफस्टाइल के लिए भी हमें प्रकृति, देश और काल को ध्यान में रखते हुए करने के लिए बोला हुआ है. नॉट ओनली दैट, पित्त रिलेटेड जो नानात्मक विकार हैं उसमें भी सबसे बड़ा एक विकार रक्त पित्त जीवादान बोला हुआ है. कफ के लिए जो नानात्मक विकार है उसमें अतिस्थौल्य और धमनी प्रतिचय जैसी कंडीशन बताई हुई है. सो दैट टेल्स दैट प्रकृति हैज लॉट ऑफ रोल इन not only manifesting the features of health but also in susceptibility to disease conditions. Next slide. Same way for prognosis. Next slide. That is the reason why they have added it in clinical methods of examination. Every place जहाँ पे भी आप examination करोगे वहाँ पे
प्रकृति विकृति दोनों को देखना है. So it's not एक बेसिक साइंस का कॉन्सेप्ट है, it's a practical concept to be integrated in the clinical methods. Next slide. So what we thought was that can we take prakriti as a phenotypic scaffold for understanding the phenotype to genotype correlations and that can identify markers. So इसमें multi-omic क्या होता है? Multi-omic का मतलब क्या है? किसी को आइडिया है? What is multi-omic? What is omics? जैसे जीन सुना होगा, सब लोग तो 12th करके आए होगी ना. 12th में तो जीन वगैरह सब बता देते हैं, क्रेट, मेंडल्स लॉ सब. हाँ? जीन एक जीन हुआ और पूरे हमारे जितने भी जीन्स हैं और जितना भी डीएनए है उसे कहते हैं जीनोम. तो वो एक ओम हो गया. फिर वो जीनोम जब ट्रांसक्राइब होता है आरएनए में तो वो ट्रांसक्रिप्टोम. फिर उसके बाद वो आरएनए ट्रांसलेट होता है प्रोटीन में तो वो होता है प्रोटियोम. तो इस तरह से मल्टीपल लेवल पे आप मल्टीपल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनटू द सेल्यूलर फंक्शंस, अगर आप सेंट्रल डॉगमा जिसे कहते हैं ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, उस हर स्टेप पे अगर आप देखना चाहो कि वातपित्त कफ के प्रकृति के लोगों में ये डिफरेंस है कि नहीं, सो दैट इज कॉल्ड मल्टी ओमिक्स, है ना. सो आई थिंक मैंने एक वेबिनार का लिंक भी शेयर किया था जिसमें ये बेसिक लेक्चर्स जो हमने लिए थे वो भेजे गए थे. अगर एनी ऑफ यू हैव रेड यू विल फाइंड इट इजी टू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट स्लाइड. सो फॉर दैट व्हाट डू वी नीड टू डू? फर्स्ट तो हमें अपने ही से शुरुआत करनी होगी कि आयुर्वेद में प्रकृति के क्या लक्षण बोले हुए हैं और आयुर्वेद में उसके असेसमेंट के क्या मेथड्स बोले हुए हैं. तो वो आयुर्वेद के जो लक्षण है, जो गुणों के आधार पे बताए हैं, परस्पर विरोधी गुणों के आधार पे विरोधी लक्षण भी बताए हुए हैं, उनको लेके हमने एक क्वेश्चनर डेवलप किया. नेक्स्ट स्लाइड. और फिर नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल्स ऑफ ए गिवन पॉपुलेशन में उन सबका एनालिसिस करके और फिर आगे चल के उनका सैंपल लेके सिस्टम लेवल एनालिसिस हमने परफॉर्म किया. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो दिस कैन बी डन एट जेनेटिक लेवल, एट सेल्युलर लेवल, एट ऑर्गन सिस्टम फिजियोलॉजी लेवल एंड एट द होल ऑर्गेनिज्म लेवल. लेकिन हमें स्टार्ट कहाँ से करना होगा? नॉर्मल पॉपुलेशन में, जैसे क्योंकि हमारे यहाँ पे देशानुपातिनी, कालानुपातिनी, वयोनुपातिनी प्रकृति बोली हुई है, तो इसका मतलब इन सब फैक्टर्स का भी प्रकृति पे इन्फ्लुएंस होता है. तो अगर आपको एक किसी देश की प्रकृति देख के और डिवाइड करना हो वातपित्त कफ के. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. राइट. सो अभी इस पे, हाँ अभी इस पे रुक जाना. राइट. सो ये पिछली बार वापस ले जाओ इसको. हाँ. सो इसमें क्या किया हमने, अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशन के लोगों को हम देख सकते हैं, लेकिन हमने स्टार्ट किया पहली स्टडी नॉर्थ इंडियन दिल्ली एनसीआर रीजन में, जहाँ 18 to 40 इयर्स एज ग्रुप के ही लोग, क्योंकि वयोनुपाति से भी फर्क पड़ सकता है, तो हम अगर मॉलिक्यूलर कोरिलेट देखेंगे एक 60 साल में और एक 18 साल में तो डेफिनेटली फर्क आएगा. तो वो प्रकृति की वजह से नहीं है, वो तो वय की वजह से है. तो इसीलिए हमने एक स्पेसिफिक एज ग्रुप के लोगों का और स्पेसिफिक जियोक्लाइमेटिक कंडीशन में रहने वाले लोगों का प्रकृति एनालिसिस करके और उनको 7 क्लासेस में डिवाइड किया. लेकिन क्योंकि हमारी ये पहली स्टडी थी जहां हमें दिखाना था कि जेनेटिक और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ दोषा है, तो इसलिए हमने एक्सट्रीम प्रकृति के इंडिविजुअल, जिसे एकल बोलते हैं, जो केवल एकल नहीं होते लेकिन हाईएस्ट अमाउंट ऑफ पित्त वर्सेस हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कफ जिनमें है, उनको कंपेयर किया. अब नेक्स्ट स्लाइड. और हमने देखा कि नॉर्मल उसमें हमने क्या किया. अच्छा, इसमें वन मोर थिंग एज अ स्टूडेंट आई जस्ट वांट टू टेल, ऑल ऑफ दिस थिंग हैव टू अंडरगो institutional research board clearance, institutional ethics board clearance before even asking questionnaire and taking blood sample. So blood sample जब हमने peripheral blood से blood sample लेके उनका जो normal routine test होते हैं वो सारे करवाया, 48 to 50 टेस्ट, और एक उनका RNA भी isolate किया. blood cells में जो RNA होता है वो RNA एक isolate करने का method होता है. और RNA is a measure of किस टाइप के जीन्स उनके एक्सप्रेस हो रहे हैं. तो पहले तो मैं आपको बायोकेमिकल लेवल का दिखा रही हूँ कि नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल्स ऑफ इस यंग एज ग्रुप कमिंग फ्रॉम द सेम ज्योग्राफिकल लोकेशन, दे स्टिल हैड अ डिफरेंस इन द बायोकेमिकल लेवल्स इन ऑल्दो विद इन द नॉर्मल लिमिट. ये क्या दिखा रहा है कार्टून की विद इन नॉर्मल, चाहे ये डिजीज है ये डिजीज है, ये सारे नॉर्मल थे, लेकिन फिर भी नॉर्मल में भी उनकी रेंजेस में डिफरेंस था. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो वो कहाँ डिफरेंस था? वो था कि
HDL, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, लिपिड प्रोफाइल, पूरा हेमाटोक्रिट पित्त में ज़्यादा था और लिपिड प्रोफाइल कफ में ज़्यादा था और वात में। और ये ब्लू में जो दिख रहा है वो जीन एक्सप्रेशन, कौन से जीन्स ज़्यादा एक्सप्रेस हो रहे हैं वात में इन कंपैरिजन टू पित्त एंड कफ, सेम वे इन पित्त इन कंपैरिजन टू कफ एंड वात। सो इस तरह से जीन एक्सप्रेशन चेंजेस को भी हमने क्लासिफाई किया कि ये जीन्स भी आप लोग देखोगे कभी इंटरनेट पे जाके, एक इसे कहते हैं जीन ऑन्टोलॉजी। जैसे हम लोग चीजों का क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण, वात के भी 5 टाइप, पित्त के भी 5 टाइप, कफ के 5 टाइप, ऐसे जो जीन्स है ह्यूमन जीनोम में 20,000 जीन्स, उनके भी उनके फंक्शंस के हिसाब से और वो कौन सी जगह पे ज्यादा एक्सप्रेस होते हैं उसके हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन हुआ। जैसे मैं लिखा है यहाँ पे सेल साइकिल ट्रांसपोर्ट, इसका मतलब जीन्स विच आर पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स विच विल टेक पार्ट इन cell cycle process or transport process, they were more expressed in Vata individuals in comparison to Pitta and Kapha. So this has to be read like that. Okay, so मैंने वहाँ दिखाया कि genomes to transcriptome to proteome metabolome, तो ये हमने ट्रांसक्रिप्टोम लेवल की स्टडी में अभी आपको दिखा रही हूँ। और मेटाबोलाइट्स यानी कि वो हमारे बायोकेमिकल्स जो होते हैं वो मेटाबोलाइट्स हैं। तो ये डिफरेंसेस हमको देखने को मिले। अब ये डिफरेंसेस है तो है, इससे क्या फर्क पड़ता है। नेक्स्ट, इसको भी क्लिक करके पूरा स्लाइड कर दीजिए। हाँ, जस्ट बैक। हाँ, सो इसमें हमें एक जीन मिला था EGLN1 जो कि ऑक्सीजन सेंसर हर एक सेल में होता है, तो उस सेल में कितना ऑक्सीजन अवेलेबल है उसको वो सेंस करता है। जब ऑक्सीजन कम होता है तो वो डाउन हो जाता है और जो हाइपोक्सिया को रिस्पॉन्ड करने वाली जीन होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो ये GLN1 ज्यादा होगा और हाइपोक्सिया का जो पैनिक स्विच है वो कम हो जाएगा, कभी इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब ऑक्सीजन कम होता है सेल में तो ये जीन डाउन हो जाता है और हाइपोक्सिया वाला स्विच ऑन हो जाता है कि भैया यहाँ ऑक्सीजन कम है। बहुत सारी प्रोसेसेस को वो स्विच ऑन कर देता है कि भाई एंजियोजेनेसिस करवाओ, एरिथ्रोपोएसिस करवाओ, मेटाबॉलिज्म को स्लो करो, क्योंकि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में ऑक्सीजन कंजम्पशन ज़्यादा होती है तो हमें कंजम्पशन को रोकना है। इस तरह से बहुत सारे चेंजेस वो करवाता है। लेकिन इस जीन में एक्सप्रेशन लेवल में हमको डिफरेंस दिखाई दिया था। फिर हम उससे ऊपर गए कि DNA लेवल पे क्या डिफरेंस है। तो जीन जो है ना ATGC की सीक्वेंस होती है, आप लोगों को ये पता होगा, राइट? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ ATGC। किसी एक पोजीशन पे अगर T की बजाय C हो जाए तो उसकी वजह से कोई अमाइनो एसिड चेंज होके भी चेंज हो सकता है, या फिर वो उसका रेगुलेटरी फंक्शन उसका चेंज हो जाना हो सकता है। तो ये एक दो पोजीशंस पे इस जीन में हमें डिफरेंस दिखाई दिया। वो पोजीशंस का जो डिफरेंस है, जैसे 100 लोगों में लिया तो यहाँ पे कफ वालों में डबल टी जो है दोनों क्रोमोसोम पे TT जो है वो 50% लोगों में था, जबकि पित्त में वो हार्डली 1% लोगों में भी 10% लोगों में भी नहीं था। तो ये फ्रीक्वेंसी है, ऐसा नहीं हो यस और नो नहीं होता है, लेकिन ज्यादातर पित्त के लोगों में वो TT फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी, जबकि पित्त के लोगों में कम थी और कफ के लोगों में ज्यादा थी। तो अभी सवाल ये उठता है इससे क्या फर्क पड़ता है, थी तो थी, है ना, लेकिन क्या ये जीन, क्योंकि ये ऑक्सीजन सेंसर जीन है, इसका एक्सप्रेशन पैटर्न भी डिफर करता है पित्त में और कफ में, और इसका DNA लेवल पे भी एक जेनेटिक वेरिएशंस हैं 2 जगह पे, 2 पोजीशन पे, जो पित्त और कफ में वेरी करते हैं। तो क्या इसके कोई मायने हैं, है ना? तो इसीलिए हमने इसको आगे ले जाके देखने की कोशिश की। जब ऑक्सीजन सेंसर जीन में फर्क है अगर एक्सप्रेशन पैटर्न में, तो कोई ऐसी सिचुएशन जहां पे लो ऑक्सीजन से कोप अप करना होगा अगर, तो क्या पित्त और कफ वालों का रिस्पॉन्स अलग अलग होगा। सो अब हम या तो उनको लेके जा सकते थे हाई ऑल्टीट्यूड में और देखो कि पित्त वाले ज्यादा कोप अप कर रहे हैं या कफ वाले ज्यादा कोप अप कर रहे हैं, या फिर हम ये कर सकते थे कि अब क्योंकि हमें जेनेटिक वेरिएशन मिल गया है कि ये पित्त और कफ में डिफर करता है, अब इस जेनेटिक वेरिएशन को उन लोगों में भी देखें जो जाके ऊपर बीमार पड़ जाते हैं, या उन लोगों में जो वहां आराम से रह रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये हमने देखा कि जिसे कहते हैं ना हाई ऑल्टीट्यूड पल्मोनरी इडीमा और हाई ऑल्टीट्यूड नेटिव्स, जो लोग वहां पे रह के आराम से कोप अप कर रहे हैं, उनमें इस जेनेटिक पोजीशन पे वैसे ही जीनोटाइप से जैसे पित्त में है, और जो हाई ऑल्टीट्यूड पल्मोनरी इडीमा से सफर किए वहां हाई ऑल्टीट्यूड में जाके,
उनका जीनोटाइप कफ के जैसा था, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो। जैसे ये हाई ऑल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा के जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी है, ये कफ की है, ये पित्त की है और ये नेटिव्स की है। तो इस तरह से कफ और हेप वालों का सिमिलर दिखाई दिया और पित्त और नेटिव्स वालों का सिमिलर दिखाई दिया। इससे एक आइडिया लगता है कि कफ वाले अगर ऊपर जाएं तो उनको ज्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट स्लाइड। और यही चीज यहाँ पे पिक्टोरियली दिखाई गई है कि ये हाई ऑल्टीट्यूड नेटिव्स जो हम बोल रहे हैं वो यहाँ के लोग थे, और ये पित्ता हैज अ जीनोटाइप व्हिच इज सिमिलर टू नेटिव्स ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड, and Kapha had a genotype which was similar to people suffering from high altitude pulmonary edema. अब ये तो सिर्फ इंडियन पॉपुलेशन का हो गया, फिर वर्ल्ड में भी तो बहुत सारे ऐसे पॉपुलेशन हैं जो हाई ऑल्टीट्यूड पे होते हैं और कुछ नॉर्मल ऑल्टीट्यूड सी लेवल पे रहते हैं। तो उन सब का डेटा भी डिजिटल वर्ल्ड में इंटरनेट पे इस पर्टिकुलर जीनोटाइप के लिए अवेलेबल था। तो वो भी हमने देखा कि जब भी कोई हाई ऑल्टीट्यूड पॉपुलेशन के लोगों का हमने डेटा देखा वो पित्त जैसी फ्रीक्वेंसी के साथ फॉल कर रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जीनोटाइप, ये जो जीन सीक्वेंस हमें मिला है ये पर्टिकुलर पोजीशन पे, इसका हाई ऑल्टीट्यूड एडेप्टेशन और हाइपोक्सिया रिस्पॉन्सिवनेस के साथ कोई लेना देना है। सो नाउ सी, हमारे पित्त और हमारे प्रकृति क्लासिफिकेशन से थोड़े से सैंपल से भी हमें ये जेनेटिक वेरिएशन दिखाई दिया, और वो दिखाई दिया तो वहां तक खत्म नहीं हो गई बात। उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसका एसोसिएशन क्या है किसी कंडीशन के साथ, वो आगे देखा गया, तब उसकी इतनी वैल्यू हुई कि ये तो एसोसिएशन पहले कभी पता ही नहीं था। तो इसलिए हमारा ये यूएस के जर्नल में ये पेपर छपा, EGLN1 इन्वॉल्वमेंट इन हाई ऑल्टीट्यूड एडेप्टेशन रिवील्ड थ्रू जेनेटिक एनालिसिस ऑफ एक्सट्रीम कॉन्स्टिट्यूशन टाइप्स डिफाइंड इन आयुर्वेदा। ये आयुर्वेदा वर्ड इस जर्नल में पहली बार आया था। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इसी तरह से हमने और भी जेनेटिक वेरिएशंस ढूंढने की कोशिश की कि भाई कहाँ कहाँ पित्त और कफ में, लेकिन हमने पूरा जीनोमिक वेरिएशन नहीं किया, ऐसे आइडेंटिफाई किए इस जीन में, इस जीन में, इस जीन में, क्योंकि हमारे किसी और प्रोजेक्ट के साथ ये काम चल रहा था। जो आप IE देख रहे हो यहाँ पे, ये हमारा इंडो यूरोपियन बैकग्राउंड पॉपुलेशन का डेटा है। तो अच्छा, दूसरा ये भी दिखाता है कि अगर बैकग्राउंड पॉपुलेशन का डेटा के साथ देखें तो VPK को अगर हम मर्ज करें तो कोई खास डिफरेंस दिखेगा नहीं, लेकिन अगर हम कफ और पित्त और वात में इसको सेपरेट करें तो कफ, पित्त और वात में आपस में अच्छा खासा डिफरेंस दिखाई देता है। तो अगर हम प्रकृति में सेपरेट ना करें और सबको मिला के देखें तो ये बैकग्राउंड जैसा ही दिख रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादा डिफरेंस है ही नहीं। लेकिन अगर हम इनको सेग्रीगेट करें एक्सट्रीम प्रकृति वालों को, तो हमें ये एक तरह की टारगेट पॉपुलेशन मिल सकती है कि इनको जो है ध्यान से देखने की जरूरत है। जैसे एक नेक्स्ट जीन आपको दिखाऊंगी मैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, और इसको और क्लिक कर दीजिए, हाँ पूरी स्लाइड ला दीजिए। हाँ, सो इसमें एक वॉन विल्ब्रेंट फैक्टर है, जिसे जो प्लेटलेट ग्लाइकोप्रोटीन होता है, जब ये बढ़ता है तो थ्रोम्बोसिस होता है, मतलब थ्रोम्बोसिस या ब्लीडिंग को रोकने के लिए इसकी जरूरत होती है। अब इसमें भी एक जेनेटिक वेरिएशन ऐसा था जो पित्त और कफ में डिफर कर रहा था। अब ये डिफर कर रहा है तो इसका क्या मायने होगा, तो हमने लिटरेचर ढूंढा, तो लिटरेचर में पाया गया, उस वाले में तो लिटरेचर में हाई ऑल्टीट्यूड से रिलेशन कभी देखा ही नहीं गया था, वो नॉवेल था। लेकिन इस वाले में हमें लिटरेचर मिला कि ये जो कफ के साथ एसोसिएटेड जेनेटिक वेरिएशन है, ये एक नॉर्मल जीनोटाइप है जो थ्रोम्बोटिक फिनोटाइप के साथ एसोसिएटेड है, लेकिन ये है जो ये ब्लीडिंग के साथ एसोसिएटेड है। सो अगर हमारा जो पित्त का ब्लीडिंग के लिए ससेप्टेबिलिटी और कफ की थ्रोम्बोटिक आउटकम्स के लिए ससेप्टेबिलिटी इज व्हाट गेट्स वैलिडेटेड। और फिर हमने देखा कि EGL हाइपोक्सिया जब होता है तब थ्रोम्बोसिस भी इंड्यूस होता है। तो क्या इसका कंबाइंड इफेक्ट कुछ अलग होगा कि EGLN1 और VWF के जो जेनेटिक वेरिएशंस हैं वो दोनों जिस तरह से कफ में प्रेजेंट है, वो हाइपोक्सिक कंडीशन में थ्रोम्बोटिक आउटकम्स देने के लिए ज्यादा वो प्रोबेबल हैं, जबकि पित्त वाले ब्लीडिंग ससेप्टेबिलिटी देने के लिए ज्यादा प्रोबेबल हैं। सो दिस ओनली टेल्स दैट ये कंबाइंड फ्रीक्वेंसी से और भी ज्यादा एक्सप्लेन होता है पित्त और कफ का थ्रोम्बोसिस और ब्लीडिंग एक्सिस के साथ के मायने में डिफरेंस। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
तो आगे हमने ये तो मैंने जैसे कहा कि हमने कैंडिडेट जीन अप्रोच से किया, फिर उसके बाद हमने जितने भी जीनोम में हमारे कोडिंग जीन्स हैं, जो 20,000 जीन्स मैंने बताया, कोडिंग जीन्स और उनके रेगुलेटरी पार्ट, इसको कहते हैं एक्सोम। तो एक्सोम जीन में एक्सॉन्स होते हैं, इंट्रॉन्स होते हैं। जो एक्सॉन्स होते हैं वो कोड करते हैं अमीनो एसिड के लिए, जो कि आगे चल के प्रोटीन बनाते हैं। तो जो एक्सोनिक वेरिएशंस हैं वो पूरे जीनोम के एक्सोनिक वेरिएशंस हमने वातपित्त कफ प्रकृति में देखे कि कहाँ कहाँ इनमें वातपित्त कफ के आधार पे डिफरेंस देखने को मिलता है। इसे कहते हैं नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। तो उसका भी आगे डेटा मैं दिखाऊंगी, लेकिन उसमें ये जो ब्लीडिंग थ्रोम्बोसिस की बात को पूरा करने के लिए कि उसमें फार्मेकोजिनोमिकली रेलेवेंट जो जीन्स ऑलरेडी यूएस एफडीए जैसी जगहों पे अप्रूव्ड है कि वॉरफेरिन या क्लोपिडोग्रेल जैसी ब्लड थिनर मेडिसिन देते हैं, तो वो लोगों को कई बार कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, तो उनको कुछ जेनेटिक टेस्ट करने के बाद ही उनका डोज डिसाइड किया जाता है। तो वैसे वाले जीन्स में हमें डिफरेंस दिखाई दिया कि जैसे फॉर एग्जांपल F2 जिसमें SNP which is associated with a lesser dose requirement of warfarin, anticoagulant warfarin, वो पित्त में ज्यादा था। तो ये अगेन दिखाता है कि पित्त की जो ब्लीडिंग टेंडेंसी वाली बात है या कफ की थ्रोम्बोटिक टेंडेंसी वाली बात है, ये अलग अलग सोर्स ऑफ एविडेंस से हमें सेम डायरेक्शन में लेके जा रही है। ये सब मैंने नीचे सबके पेपर के नाम लिखे हैं, जस्ट इन केस यू वांट टू रीड इन डिटेल। दीज आर पब्लिश्ड बाय अस ओनली। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अगेन यही वाली बात बताता है जो मैंने अभी बोला। नेक्स्ट स्लाइड। So this tells that there's if we systematically explore our literature, both for therapeutic, जैसे कि हम सुबह से सुन रहे हैं, as well as for the diagnostic aspect, which is related to examination of the patient, not only from the disease point of view, but also from the baseline tendency and pattern point of view, which is Prakriti. And you make a classification, you can actually identify मॉलिक्यूलर एंड जीनोमिक डिफरेंसेस। वो तो हो गए, मॉलिक्यूलर टेस्ट हो जाएंगे, फिर क्या ये टेस्ट कर लो तो आपको ब्लीडिंग हो सकती है, ये टेस्ट कर लो तो। लेकिन हमें क्या उसका आयुर्वेद का क्या कंट्रीब्यूशन, तो आयुर्वेद का ये होगा कि आप टारगेट पॉपुलेशन बिना जेनेटिक टेस्ट के भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये मल्टीपल टाइम्स अगर हम वैलिडेट करके दिखा दे तो कि ओके, जैसा मैंने दिखाया कि पित्त में अलग था, किसी में कफ में अलग था, तो आप बोलोगे कि हाँ ये वाली पॉपुलेशन है जिसको ये वाला चीज के प्रति इस एनवायरनमेंट में जाने से ध्यान रखना है, या इस पर्टिकुलर डिजीज से ससेप्टिबिलिटी ज्यादा हो सकती है। सो क्योंकि हमें इसके एसोसिएटेड बायोमार्कर्स उनमें ज्यादा देखने को मिले। सो ऑन वन हैंड देयर इज अ बायोमार्कर डिस्कवरी, ऑन अदर हैंड एट द क्लिनिकल लेवल वी हैव अ मोर कॉन्फिडेंस ऑन यूजिंग आवर ओन क्लिनिकल मेथड्स ऑफ प्रेडिक्टिव मेडिसिन एंड पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। सो दिस इज जस्ट अ डिपिक्शन ऑफ द समरी दैट किस तरह से एंशिएंट नॉलेज को हम सिस्टमैटिकली एक्सप्लोर करके वो कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि ऑक्सीजन सेंसर जीन ये सिर्फ हाई ऑल्टीट्यूड में जाके ही तो नहीं ना एक्टिवेट होगा, वो तो हमारे बॉडी में हर समय काम कर रहा होगा। तो ऑक्सीजन सेंसिंग हर समय वो सेल में कर रहा है, तो जब मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा हो जाएगा, ऑक्सीजन ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा, तो ऑक्सीजन लेवल कम दिखेगा, तो उसको वो मेटाबॉलिज्म को थोड़ा स्लो करेगा, फिर बढ़ाएगा। इस तरह से साइक्लिकल वे में चलता है। लेकिन हाइपोक्सिया अपने आप में बहुत सारे डिजीजेस में इम्प्लीकेटेड है एज अ कॉज और एज अ मॉडिफायर। कि डिजीज तो हो गई, लेकिन अगर साथ में हाइपोक्सिया भी हो गया तो वो डिजीज को ज्यादा एग्रेवेट कर सकता है। तो ऐसी एक सिचुएशन हमारे लैब में एक साइंटिस्ट है डॉक्टर अनुराग, वो कर रहे थे अस्थमा में माउस मॉडल में। तो हमने उनको कहा कि अगर ये जीन हम आप ओवर एक्सप्रेस करके दिखा दें, EGLN1 को डाउन करें तो हिफ ओवर एक्सप्रेस हो जाएगा तो ऐसे में अस्थमा को क्या होगा। तो उन्होंने दिखाया कि अस्थमा बहुत ज्यादा सीवियर फॉर्म ले लेता है, इतना कि इसमें जब स्टेरॉइड भी देते हैं तो वो रिकवर नहीं होता है। तो इस तरह से ये पता चला कि ये पर्टिकुलर जीन ना सिर्फ हाई ऑल्टीट्यूड रिस्पॉन्स में बट डिजीज मॉडिफायर के रूप में भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ख वैगुण्य में बोलते हैं कि अगर श्वास हुआ तो श्वास तो वैसे वात कफज व्याधि है, लेकिन प्रथमक श्वास जिसमें ज्वर, तृष्णा, जो जिसमें बहुत ज्यादा पित्त सिम्टम्स दिखते हैं, उसको ज्यादा सीवियर माना जाता है। क्यों? क्योंकि पित्त ने उसको वात कफ को कंट्रोल करने के लिए बढ़ गया। अगर वात कफ कंट्रोल भी नहीं हुआ और पित्त भी बढ़ गया तो एक तो बहुत ही सीवियर सिचुएशन हो गई। तो ऐसे सिचुएशन में हमें
पित्त कफ को बैलेंस करने वाली मेडिसिन देनी होगी। तो आगे चल के हमने उसके ऊपर भी काम किया है कि इसी सिचुएशन में जहाँ सीवियर एस्थमा बन जाता है और पित्त और कफ वाली सिचुएशन आ गई, तो क्या हम पित्त कफ को बैलेंस करने वाली और डाउन करने वाली मेडिसिन देने से वो चीज़ रिवर्स होती है कि नहीं, वो हमने किया है, जो आप पढ़ सकते हैं, जो अमेरिकन जर्नल ऑफ रेस्पिरेटरी बायोलॉजी में वो रेस्पिरेटरी रिसर्च में पेपर छपा है। नेक्स्ट स्लाइड। तो इस तरह से बेसिकली ये है कि नाउ दैट वी हैव फाउंड ए मॉलिक्यूलर एंड जीनोमिक बेसिस एंड सम मार्कर्स, जैसे इनेट इम्यून रिस्पॉन्स रिलेटेड जीन्स पित्त में ज़्यादा एक्सप्रेस थे और बी सेल रिलेटेड इम्यून जीन्स कफ में ज़्यादा एक्सप्रेस थे। तो इस तरह से आपको इम्यूनिटी, हाइपोक्सिया, हीमोस्टेसिस, इन्फ्लेमेशन, इन प्रोसेस में वात पित्त कफ में डिफरेंसेस दिखते हैं ये। और एक सेल साइकिल, एक बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएशन जो देखने को मिला वो था कि सेल साइकिल रिलेटेड जीन्स में और डीएनए रिपेयर रिलेटेड जीन्स में वात में वो बहुत ज़्यादा दूसरे दो के मुकाबले बढ़े हुए थे। सो इन अ वे वात में आपको सेल साइकिल और डीएनए रिपेयर वाले जीन्स ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, पित्त में हीमोग्लोबिन और इनेट इम्यून रिस्पॉन्स वाले ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, और इसमें आपको थ्रोम्बोटिक वाली एक्सप्रेशन वाला पैटर्न ऑफ एक्सप्रेशन ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो वी कैन परस्यू दिस थिंग्स इन अ वेरी डिफरेंट डायरेक्शंस। सो एक डायरेक्शन तो ये है कि यही प्रकृति का रिसर्च, क्योंकि हमने दिल्ली एनसीआर रीजन में किया था, हमने दूसरे रीजन्स में भी करके देखना है क्या दूसरी जगह पे भी प्रकृति, अगर वात पित्त कफ डिवाइड किया हमने तो जो हमने यहाँ देखा क्या उनमें भी दिख रहा है। दूसरा, अब ये क्वेश्चनेयर हमने बनाया, तो क्या इस क्वेश्चनेयर को लार्ज स्केल पे अगर यूज करना हो तो इसके एनालिसिस के एल्गोरिदम्स, ये सारी चीजें हमने आगे चल के की हैं। और रेलेवेंस ऑफ हाइपोक्सिया एंड अस्थमा मैंने आपको बता ही दिया। फिर अभी ये है कि मल्टीओमिक एनालिसिस करके हमने प्रकृति के कोरिलेट्स देखे, तो क्या मल्टीओमिक एनालिसिस करके हम थेरेपेटिक प्रोसीजर्स के इफेक्ट्स भी देख सकते हैं बिफोर ट्रीटमेंट एंड आफ्टर ट्रीटमेंट। तो ये भी हमने किया है, बल्कि डॉक्टर मनदीप गोयल गुजरात आयुर्वेद अपना IPGTNRI के कोलैबोरेशन में बस्ती में हमने स्ट्रोक पेशेंट्स में बस्ती देख के उनका जीन एक्सप्रेशन डिफरेंसेस देखा है। फिर अब ये है कि अल्टीमेटली प्रकृति का जो रोल है वो हमें डिजीज स्ट्रैटिफिकेशन में यूज करना है ना, क्योंकि प्रिसीजन हेल्थ तो वहाँ आएगी कि एक ही डिजीज 100 लोगों को हुई है तो क्या सबको सेम दवाई चलेगी? नहीं, उसकी डिजीज की सीवियरिटी सब टाइप तो देखनी ही पड़ेगी, लेकिन टॉलरेंस टुवर्ड्स मेडिसिन और वो सब टाइप भी उन लोगों में ज्यादा डेवलप होगी जो उस प्रकृति के होंगे, राइट। तो क्या हम डिजीज स्ट्रैटिफिकेशन भी कर सकते हैं प्रकृति के आधार पे। एक है कि कोई एक प्रकृति में कोई एक व्याधि ज्यादा देखने को मिले, लेकिन कोई व्याधि ऐसी होती है जो किसी भी प्रकृति वाले को हो सकती है, लेकिन क्या उसकी सीवियरिटी डिफरेंट होगी क्योंकि साध्यता में तो बोला ही है ना, काल प्रकृति दुष्याणाम, कि अगर आपकी प्रकृति और दोष और विकृति की प्रकृति सेम होगी अगर तो सीवियर हो जाता है। तो विच मीन्स कि सीवियरिटी और प्रोग्रेशन के मार्कर्स अलग अलग लोगों में अलग अलग मिलेंगे। तो ये वाली स्टडीज हम लोग सब परस्यू कर रहे हैं। सो just एक एग्जांपल देके आई क्लोज बिकॉज वी आल्सो हैव टू कम बैक फॉर 2 o'clock। नेक्स्ट स्लाइड। सो जो मैंने कहा कि हमने नॉर्थ वाले में किया था तो फिर दूसरी जगह पे भी करना है, तो मैं एक और स्टडी का एग्जांपल दूंगी। नेक्स्ट स्लाइड। जो हमने सेम चीज, इसको इस स्लाइड को पूरा कर दीजिए। हाँ, ये वडू पॉपुलर, हाँ, तो ये महाराष्ट्र में एक हेल्थ एंड डेमोग्राफिक सर्विलेंस सिस्टम है वडू। वहाँ के पॉपुलेशन का मोर और लेस जेनेटिक बैकग्राउंड भी सेम है, उनका खाना पीना भी सेम है। तो अगर डिफरेंस आया है प्रकृति की वजह से तो हम सेफली बोल सकते हैं कि प्रकृति की वजह से। नेक्स्ट स्लाइड। इनमें भी सेम हमने एक्सोम सीक्वेंसिंग एनालिसिस किया और देखा कि जो वात पित्त, जैसे नॉर्थ इंडिया ये हो गया, नॉर्थ इंडिया और ये वडू, दोनों में हमने देखा कि वात किसी पर्टिकुलर जेनेटिक वेरिएशन में वात की फ्रीक्वेंसी कम है और पित्त की ज्यादा है। तो इसे कहते हैं प्रोफाइल लेवल मैच, है ना, चाहे वो नॉर्थ इंडिया का हो या वडू लेवल का हो। इस तरह से हमें 115 प्रोफाइल रेप्लिकेटेड जेनेटिक वेरिएशंस देखने को मिले
जो कि चाहे कहीं का भी पॉपुलेशन हो उसमें वो जेनेटिक वेरिएशन वात में और पित्त में जिस तरह से डिफर करता है उसी तरह से दूसरे पॉपुलेशन में भी डिफर करता है। और सवाल ये है कि ये नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट दबाना, ये वाले 115 प्रोफाइल एसएनपीज हैं क्या, इनका क्या रोल है? तो अगेन आई फॉर द सेक ऑफ स्टूडेंट्स बेनिफिट कि बहुत सारा जीनोमिक और मॉलिक्यूलर डेटा जो लोग स्टडीज करते हैं, जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडीज करते हैं, वो कैटलॉग में आपको देखने को मिलती हैं, वो लोग डिपॉजिट करते हैं। वो डेटा के साथ जब हम अपना डेटा मैच करके देखते हैं तो देखा कि ऐसे 6 एसएनपी थे जो जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडीज में लोगों ने रिपोर्ट किया है किसी ना किसी डिजीज ससेप्टिबिलिटी के साथ उनका लिंक। इसका मतलब है कि वातपित्त कफ में जो जीन्स डिफर करते हैं वो लोगों ने दिखाया है किसी ना किसी डिजीज एसोसिएशन के साथ रिलेटेड, राइट? लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी उस डेटाबेस में नहीं है, तो वो हमारे लिए नोवेल है। अब वो नोवेल है तो उनको और तरीके से भी देखना होता है, तो ये जीन्स और क्या कर रहे होंगे, ये जेनेटिक वेरिएशन से और क्या फर्क पड़ रहा होगा, ये सारी चीजें हम स्टडी करते हैं आयोजेनोमिक्स में। लेकिन एक चीज जो टेक होम है, ये सिमिलर पैटर्न्स ऑफ एक्सोनिक डिफरेंसेस इन 115 प्रोफाइल एसएनपीज इन प्रकृति कोहॉर्ट्स वर ऑब्जर्व्ड। और इसमें अगर हम, जैसे मैंने कहा कि हम और तरह से भी देखते हैं कि ये जेनेटिक वेरिएशंस किस टाइप के डिजीज ट्रेट्स के साथ एसोसिएटेड है। तो चाहे नॉर्थ का डेटा हो चाहे वडू का डेटा हो, ये हेमेटोलॉजिकल पैरामीटर्स, एनाटॉमिकल ट्रेट्स, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, इनसे एसोसिएटेड जेनेटिक वेरिएशंस हमें इन कोहॉर्ट में प्रकृति में डिफर होते हुए दिखते हैं। So this only tells, these figures I know it is not going to be possible to explain these figures in this presentation, but I want you to get familiarized with this because so that you can go and read this paper in full, so and not get perturbed by the complexity of the figure. So ये basically ये figure ये दिखाता है कि एक तरफ आपके SNPs हैं जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, जो एक जेनेटिक पोजीशन पे डिफरेंस दिखता है, उसका एसोसिएशन कौन कौन से लक्षणों के साथ दूसरों ने भी देखा है, हमने भी देखा है। ये दूसरों ने जो देखा है ये हमने डेपिक्ट किया, लेकिन ये ही जेनेटिक डिफरेंसेस हमें वातपित्त कफ में भी देखने को मिलते हैं। सो इस तरह से हम ग्लोबल डेटा के साथ मैप करके भी हमारा वो वैलिडेट कर सकते हैं कि हम जिस तरह से वातपित्त कफ को डिवाइड करते हैं, उन पैरामीटर्स पे दूसरे लोग बिना वातपित्त कफ किए भी जब करते हैं तो उनको वो जेनेटिक डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो इस तरह से तीनों स्टडीज, 2-3 स्टडीज जैसे हमने पहले देखा, हीमेटोक्रिट वैल्यूज, EGLN1 का एक्सप्रेशन और EGLN1 के SNPs, इन सबको देखते हुए और BWF जीन के SNPs और एक्सोम सीक्वेंसिंग से आए हुए SNPs, इन सबको देखते हुए लगता है कि डिफरेंशियल डिजीज ससेप्टिबिलिटी के तरह से देखो चाहे डिफरेंशियल ड्रग रिस्पॉन्सिवनेस से रिलेटेड जीन्स से देखो, एक हाइपोक्सिया हीमोस्टेसिस एक्सिस जो है पित्त और कफ में डिफरेंट होती हुई दिखती है, जिसका कि पर्सनलाइज्ड थेरेप्यूटिक्स में काफी अहमियत हो सकती है। सो इफ आई हैव टाइम आई विल गो अहेड, अदरवाइज आई थिंक आई कैन जस्ट स्विच ऑन टू द straight away go to the final slides. So having understood the molecular differences and the molecular differences being relevant in clinical conditions, we should actually integrate this into the public health. If not, I mean at least start looking at each patient also from prakriti point of view and start documenting कि हमारे एरिया में कौन सी प्रकृति का डोमिनेंस ज्यादा है, कौन से डिजीज में कौन सी प्रकृति के लोग ज्यादा आ रहे हैं। अगर एक डिजीज में सभी प्रकृति के लोग ज्यादा आ रहे हैं तो कौन प्रोग्रेस ज्यादा कर रहा है, किसको कौन सी। आप जैसे टिपिकल स्टडीज देखते हो कि हमने 2 ड्रग का कंपैरिजन किया, फॉर एग्जांपल पथ्यादिक्वात और वरुणादिक्वात का हमने कंपैरिजन किया, कुछ लोगों को फायदा हुआ इसमें, कुछ लोगों को फायदा हुआ, आपको तो रीजन ढूंढना पड़ेगा ना। तो वन ऑफ द रीजन यू कैन फाइंड आउट कि उनकी डिजीज सब टाइप, जैसे डॉक्टर मनदीप कह रहे थे कि वो वातज टाइप था या कफज टाइप था, लेकिन एक और भी हो सकता है कि कौन सी, अच्छा वो वातज कफज तो था, लेकिन क्या वो वातज कफज इसलिए था क्योंकि वो बेसिकली उस प्रकृति के भी थे इसलिए वो वातज वैरायटी में ज्यादा फॉल किए, और कोई कफज प्रकृति का था तो कफज वैरायटी में ज्यादा फॉल किया, और इस तरह से उनका रिस्पॉन्स टू ड्रग वेरी किया। सो यू कैन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। वी हैव आल्सो डन गट माइक्रोबायोम डिफरेंसेस इन एक्सट्रीम प्रकृति। गट माइक्रोबायोम आप लोगों ने सुना होगा ना
से स्टूल में हमारे बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, मेनली बैक्टीरिया, वायरल, फंजाई, सब कुछ होते हैं। उसका एनालिसिस आजकल बहुत गट ब्रेन एक्सिस को एक्सप्लेन कर रहा है कि डिफरेंट प्रकृति के लोगों में भी क्या डिफरेंट है। ये हमने पहली बार दिखाया। डिफरेंट प्रकृति के लोगों में फीमेल्स ऑफ कफ एंड फीमेल्स ऑफ वात पित्त में कुछ बैक्टीरियल कोर माइक्रोबायोम के डिफरेंट थे, एंड वो अगेन इंडिकेट करते हैं उनकी डिजीज ससेप्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिस्क्रिप्शंस हैं, जैसे कि कफ में ओवर एबंडेंस ऑफ प्रेवोटेला, और ये मॉलिक्यूलर सिग्नेचर है इंसुलिन रेजिस्टेंस का और ओबेसिटी का, इस तरह से। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो व्हाट्स द टाइम, आई मीन शुड आई कंटिन्यू? जैसा कि मैंने कहा कि वी वांटेड टू आल्सो डू द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एनालिसिस एल्गोरिथम्स। हमने बहुत कोहॉर्ट्स का मतलब नॉर्थ इंडियन कोहॉर्ट और वडू कोहॉर्ट दोनों का प्रकृति एनालिसिस करके, मतलब जो मैं एक्सट्रीम प्रकृति बोल रही हूँ, अगर हमें 100 लोगों का डेटा चाहिए एक्सट्रीम प्रकृति का, तो ऑलमोस्ट 1000 से 1200 लोगों की हमने प्रकृति की, तब हमें इतने एक्सट्रीम प्रकृति के मिले हैं। सो एक्सट्रीम प्रकृति इज नॉट इजी टू फाइंड, सो फॉर दैट वी हैव टू डू लॉट ऑफ screening to identify people with a very high score of वात, पित्त और कफ। सो इसी तरह से हमने वडू में भी 10,000 लोगों की स्क्रीनिंग करके we came to the data of 500 plus and then we did the subsequent analysis. So जैसा कि हमें पता है कि क्लिनिकल फीचर्स हमारे यहाँ दोष गुणों के आधार पे बताए हुए हैं, उसकी एक फीचर वैल्यू है, और ये कॉम्बिनेशन ऑफ दिस फीचर्स एक्चुअली प्रेडिक्ट्स द प्रकृति, राइट? तो ये हमारा एक तरह से अपने आप में एक स्ट्रक्चर्ड मेथड है। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये स्ट्रक्चर्ड मेथड है गुणा का फीचर, दोष और गुण के फीचर्स के कॉम्बिनेशन से हम प्रकृति पे अराइव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो यही इस स्लाइड को पूरा कर दीजिए क्लिक्स करके। सो कॉम्बिनेटोरियल अकरेंस ऑफ डिफरेंट फिनोटाइप्स लीड्स टू प्रकृति असरटेनमेंट। अभी हमने तो कर ली प्रकृति असरटेनमेंट क्वेश्चनेयर को भर के। अब हमने ना डेटा कंप्यूटर को दिया बिना लेबल के और बताया कि एक्सट्रीम प्रकृति वालों का सिर्फ कि देखो कि इसमें हम अगर लेबल ना दें कि ये वात पित्त कफ है, तो फिर भी क्या ये कॉम्बिनेशंस के आधार पे क्लस्टरिंग कर सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये जो है ना, ये वाली जिसमें ये सिर्फ शेप्स दिए हुए हैं, कलर नहीं है, ये अनसुपरवाइज्ड क्लस्टरिंग है, हमने लेबल नहीं दिए। उसके बाद जब हमने लेबल इम्पोज किए तो 96% कंकॉर्डेंस है। इसका मतलब ये कॉम्बिनेटोरियल प्रेजेंस है वो एक्चुअली डेटा देने पे कंप्यूटर भी कैप्चर करता है। अब ये है कि हमें मशीन को नया डेटा दे जिसका हमने लेबल भी नहीं दिया है, और तो वो अपने आप क्लासिफाई कर सकता है कि नहीं, उसके लिए हमने सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग अप्रोचेस, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, करके वी हैव डेवलप्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। सो मैं ब्रीफली बता देती हूँ। जैसे हमने 1000 लोगों का प्रकृति किया, फिजिशियंस के आधार पे प्रकृति लेबल किया, दूसरे फिजिशियन ने देखा, उसने भी प्रकृति लेबल किया, एक प्रकृति लेबल आया, इसे फिजिशियन का दिया हुआ प्रकृति लेबल, बट ऑन दैट स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर। अब ये डेटा देके मशीन को लर्न करवाते हैं कि जब हमने वात बोला तो उसमें कौन से फीचर्स मोस्टली कॉम्बिनेशन में आए, पित्त बोला तो कौन से आए। इस तरह से मशीन लर्न करता है, और मशीन लर्न करके बहुत सारे आइटरेशंस करके, बूटस्ट्रैप करके, 10-fold वैलिडेशंस करके, बहुत डिटेल प्रोसेस इसके अंदर होता है। और उसके बाद वो लर्न करता है कि ये तो वो लर्न किया, वो करेक्ट किया कि नहीं, ये देखने के लिए जिस डेटा का हमने लेबल भी नहीं दिया है, जो डेटा उसने कभी देखा भी नहीं है पहले, वो डेटा देते हैं और फिर देखते हैं कि वो करेक्ट प्रेडिक्ट करता है कि नहीं। तो इस तरह से मॉडल वैलिडेट होता है, इसी को मशीन लर्निंग एल्गोरिथम बोलते हैं, जो हमने प्रकृति के लिए डेवलप किया है, और उसकी प्रेडिक्शन एक्यूरेसी मोर देन 90%। और ये पेपर आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं, रिकैपिचुलेशन ऑफ आयुर्वेदा कॉन्स्टिट्यूशन टाइप्स बाय मशीन लर्निंग ऑफ फिनोटाइपिक ट्रेट्स। सो नेक्स्ट स्लाइड। सो इस तरह से हम लोग अब आगे प्रकृति क्वेश्चनर के आधार पे करने के साथ साथ फिजियोलॉजिकल पैटर्न्स अगर देखने हैं तो हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, लंग फंक्शन, एंथ्रोपोमेट्रिक टेस्ट, इन पैटर्न्स पे भी हम लोग प्रकृति को एग्जामिन कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। और ओमिक्स भी आगे बढ़ा रहे हैं, जैसे कि हमारे प्रकृति के क्वेश्चनर में एनाटॉमिकल फीचर्स से रिलेटेड ये सेक्शन है।
जिसमें आप पूरा हेड, फोरहेड, बॉडी बिल्ड ये सारा कुछ देखते हो, शेप, सिमेट्री, लेंथ, ब्रेथ सबके लिए। वो अगर ऑब्जेक्टिवली मेजर करना हो तो हम एंथ्रोपोमेट्री मेजर्स मशीन्स कैसे यूज कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे और पैरामीटर्स हमने इंट्रोड्यूस किए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो आई थिंक नाउ you can straight away go to slide number 55। फिर हमने अभी नेक्स्ट जो मोस्ट एक्साइटिंग चीज है जो ये की है कि बहुत एकल टाइप की प्रकृति के जो वातपित्त कफ के लोग थे उनका अगेन सेम एथिकल क्लियरेंस और कंसेंट और पूरे गाइडलाइंस फॉलो करके उनका ब्लड लेके उनके ब्लड से हमने कुछ 8-10 लोगों के सिर्फ सेल्यूलर मॉडल्स बनाए हैं कि वो सेल्स जो है हम स्टडी करने के लिए लैब में इमोर्टलाइज कर सकते हैं। तो वातपित्त कफ की एक तरह से सेल लाइंस हमने बना ली है ये देखने के लिए कि सेलुलर लेवल पे अगर हम उनको बाहर से कोई स्ट्रेस दें तो क्या वात वाला अलग तरीके से बिहेव करेगा, पित्त वाला सेल अलग तरीके से बिहेव करेगा, कफ वाला, जो सेलुलर लेवल पे इफेक्ट देखने के लिए। अब आपको याद होगा मैंने कहा था कि वात का सेल साइकिल और डीएनए रिपेयर वगैरह में एक्सप्रेशन पैटर्न ज्यादा था। इसका मतलब वो सेल प्रोलिफरेशन रेट उसका ज्यादा होने की संभावना है। तो हमने ये सेल लाइन लेवल पे ये देखा कि वात की 3 सेल लाइन, पित्त की 3 सेल लाइन, कफ की 3 सेल लाइन, उनका जो डबलिंग टाइम है मतलब प्रोलिफरेशन रेट जो है वो डिफर करता है। जैसे वात जो है सबसे फास्ट प्रोलिफरेट करता है पित्त और कफ के मुकाबले। और ये ऑब्जर्वेशन हमने बहुत सारे डाइज, केमिकल्स, बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वैलिडेट करके, वो डिटेल में अभी नहीं जा सकती, ये सारे मेथड्स को देख के भी एस्टैब्लिश कि वात की सेल लाइन ज़्यादा जल्दी प्रोलिफरेट करती है बजाय कफ और पित्त के। और अगर ऐसे में उनको यूवी स्ट्रेस दिया जाए तो वात में डेथ भी ज़्यादा होती है और रेप्लिकेशन भी ज़्यादा होता है, इसलिए वो नंबर सेम मैच कर जाते हैं एंड में। लेकिन वात में डेथ भी ज़्यादा होती है, रेप्लिकेशन भी फास्ट होता है। इस तरह का रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस जो है, डिफरेंस जो है हमने सेलुलर लेवल पे भी दिखाया है। So with this I think I will conclude and we will again go back to कि भाई इस सब से आप क्या टेक होम मैसेज ले सकते हो। So 57 स्लाइड पे चले जाइए, इसकी नेक्स्ट टू नेक्स्ट है। हाँ, so can be research questions which can follow is that multi-omic studies for understanding the mechanism of Ayurveda therapeutics जैसे कि वमन विरेचन, बस्ती, रसायन, इवन शामक द्रव्यों का। फिर प्रकृति विकृति रिलेशन और रिस्पॉन्स टू ड्रग, प्रकृति वेरिएशन इन डिजीज ससेप्टेबिलिटी। आप अपनी ओपीडी में जितने भी एक डिजीज के पेशेंट आते हैं आप सबकी प्रकृति देखो और क्या उसमें डिफरेंस आता है। प्रकृति पैटर्न्स ऑन मल्टीपल मल्टी सिस्टम फिनोटाइप्स, ये हम कंटिन्यू कर रहे हैं। Are there more molecular signatures that can explain Prakriti specific differences? So these are the things which we are doing. Next slide. And anyone who is sitting even in the clinic, even if not in the research lab, can do it. Next slide, please. Yeah, we have done this integration of Prakriti in public health settings in Rashtriya Prakriti Parikshan Karyakram, for which we were the training and implementation partners. Our questionnaire has been adopted there for application in all Ayush Health and Wellness Centers. Next. Yeah, again देश का प्रकृति परीक्षण अभी आपने सुना, हमने उसमें भी हमारा क्वेश्चन उसमें इंटीग्रेट किया था, ऐप बेस्ड एनालिसिस। नेक्स्ट, आई थिंक वी आर डन। आई कैन गो टू द एक्नॉलेजमेंट स्लाइड। So although I have not presented the data of entire Ayurgenomics, but I would like to show that Ayurgenomics is a collaborative network in different time points and in different stages. We have multiple collaborative institutions coming with us to work on this aspect. जैसे कि मैंने बोला कि बस्ती वाला काम और भी आयुर्जीनोमिक्स का एक पूरा स्टडी जामनगर में भी हुआ था। इसी तरह से जीनोमिक्स में भी हमारे कोलैबोरेटर्स होते हैं। फिर अभी हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के साथ भी कोलैबोरेट करते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड। या दिस इज आवर टीम कोलैबोरेटिव नेटवर्क एंड इन हाउस वी हैव साइंटिफिक कोलैबोरेशंस एज वेल एज स्टूडेंट्स from doing PhD in Ayurgenomics. We also have other institutions, students taking part in Ayurgenomics research as a part of their work. So, IIA हो गया, ITRA हो गया, BHU सब जगह से. So, with that I thank you. Last slide. I think last slide is this.
So this is our institute's entrance, and I thank you for your patient hearing despite sitting between the lunch. Truly thoughtful, provoking session. Ma'am, thank you for showing us how integration of modern omics technologies can validate and enhance traditional medicine. By identifying the molecular signatures behind individual constitutions, you can help pave the global shift towards predictive and participating medicine. It is clear that future of wellness lies in synergy. Thank you so much, ma'am. The CVM University has appointed Dr. Darshan Yagnik Sir, Associate Professor, Civil Engineering Department, ADIT, as observer of this national seminar. We welcome you, sir, and request you to kindly felicitate Dr. Bhavna ma'am with the certificate.